विद्यार्थी मित्रांनो, पुढे कंटिन्यू करूया. एक्सप्लेन द प्रोवर्ब वेअर देर इज अ विल देर इज अ वे. वेअर देर इज अ विल देर इज अ वे is a saying or a proverb that signifies human willpower. Here, will means strong desire, and a way means a way to success. If we have strong desire, then it can definitely lead us to success. It means if we are determined to do something, we will get it done. This will be the case even if the task is challenging or difficult or impossible. We can do anything in our life if we wish to do it. Okay. Now English workshop 1. Complete the following. Cronin's story focus on. See the line number, first paragraph, line number 1 and 2. Okay. Cronin's story focus on selfless help and the importance of dedication towards relationships in this story. Now number 2, the narrator. जैसे कि हमको पता है नरेटर ने क्या किया था, बिगेस्ट बास्केट ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स बॉट की थी, यानी बिकत ली थी बच्चों के पास से. द नरेटर बॉट, सेकंड पैराग्राफ में, द नरेटर बॉट द बिगेस्ट बास्केट ऑफ द वाइल्ड फ्रूट्स. नंबर 3, द नरेटर डेवलप्स अ लाइकिंग फॉर द टू ब्रदर्स बिकॉज दे आर innocent, serious, pleasant and earnest. ओके. अब नरेटर को बच्चों के प्रति आत्मीयता बढ़ी क्योंकि वो बच्चे इनोसेंट थे, सीरियस थे, प्लीजेंट और अर्निस्ट थे. 4. द बॉयज विश टू विजिट द विलेज पोलेटा फॉर व्हाट? टू सेल न्यूज़पेपर्स. 5. So, one can conclude from the story that, which means dash. So, one can conclude from the story that where there is a will, there is a way. Which means if we wish to do anything passionately or if we have a strong desire, then we can easily find out the way to come out of any problem in the way of success. Okay. Now solve the puzzle of words from the text. The clues are given below. जैसे डिसलो, डिसलो यानी 1 देखना है. फॉरबिड, FORBID, डिसलो फॉरबिड. मेक नोन, सेकंड आड़ा, REVEAL यानी रिवेल. ओके. देन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, तीसरा खड़ा, ENCOUNTER, एनकाउंटर. एनकाउंटर मीन्स अनएक्सपेक्टेड मीटिंग. ओके. यहाँ देखना तीसरे में खड़ा में एनकाउंटर आएगा. देन 4, गिविंग प्लेजर टू द माइंड, फीलिंग्स और सेंस और एंजॉयबल यानी प्लीजेंट. यानी 4 खड़ा देखो, PLEASANT, प्लीजेंट. ओके. PLEASANT, प्लीजेंट. सिंसियर 5, सिंसियर यानी इनोसेंट. 5वां आड़ा देखना है हमको, INNOCENT. उसमें थोड़ा गड़बड़ है, ब्लॉक जो है एक कम दिया हुआ है. INNOCENT, इनोसेंट. ओके. अब रहा 6 यानी लुक लाइक. लुक लाइक यानी रिसेंबल, RESEMBLE, रिसेंबल यानी लुक लाइक के जैसा दिखना. नाउ 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है. आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट इन योर नोटबुक. What illness did the sister suffer from?
जैसे कि हमको पता है सिस्टर सफर फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ स्पाइन. सेकंड, what surprised the narrator when he saw the brothers the second time? That two brothers wear shining shoes in the public square. That two brothers shining shoes in the public square. That surprised the narrator for the second time. 3. What did the narrator find about the boys at the hospital? Number 3. What did the narrator find about the boys in the hospital? At the hospital, तीन का आंसर है. At the hospital, the narrator found that the boys were orphans and homeless. ये दोनों बच्चे अनाथ हैं, बेघर हैं. They worked hard for the treatment of their sister who was suffering from tuberculosis and was admitted in a hospital. He also saw the girl who resembled them and they were talking to her. Okay, now 4. What was the touching story told by the nurse? What touching story the nurse told to the narrator? The nurse told the narrator about the heart-rending story of the boys, that their father was killed in a war and their home was destroyed in the war. Their sister was suffering from tuberculosis of spine. They lived in a shelter and literally starved so that they could pay for their sister's treatment. This was the touching story told by the nurse to the narrator. We can find out in the story where the answer is. Number 5. If the narrator offered the boys a large amount of cash, would they have accepted it? Say why or why no. अगर नैरेटर ने इन बॉयज़ को एक बहुत नकद राशि, बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर दी हुई होती तो क्या उन्होंने वो एक्सेप्ट की होती, उसका स्वीकार किया होता? से भाई, अगर किया होता तो क्यों किया होता, अगर नहीं किया होता तो क्यों नहीं किया होता. ओके, तो क्या लगता है आपको, उन्होंने एक्सेप्ट की होती? If the narrator offered the boys a large amount of cash, they would not have accepted it. उन्होंने वो स्वीकार नहीं की होती. क्योंकि because the boys were really hard working and honest. They believed in their work. उनको अपने काम पे विश्वास था. They would get help to get work from the narrator. उन्होंने वे काम मिलाने के लिए नैरेटर से मदद ली होती, बट नॉट कैश, लेकिन नकद राशि उन्होंने नहीं ली होती. एज दे वेर सेल्फ कंसीटेड, और इवन इफ दे वुड टेक इट, दे वुड टेक इट एज अ लोन. अगर लिए भी होते पैसे तो एक लोन करके, कर्जा करके उन्होंने लिए होते. एंड वुड रिपे हिम बैक इन इंस्टॉलमेंट्स, और इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने वो उनको वापस किए होते. बिकॉज दे वेर नोबल बॉयज, दे वेर वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर बॉयज. नाउ वी विल सी सम वोकैबुलरी फॉर. रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट. इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंस, डेडिकेट डेडिकेशन, ट्रीट ट्रीटमेंट, नरेट नरेशन, ईगर ईगरनेस, अपीयर अपीयरेंस, एम्प्लीफाई एम्प्लीफिकेशन, रियलाइज रियलाइजेशन. ओके, you have to read the story again and find out all these noun forms. लैंग्वेज स्टडी देखते हैं हम. ग्रामर. We have already learnt that clause is a group of words that has a subject and a verb and is a part of a larger sentence. हमने ये पढ़ा है कि clause यानी उपवाक्य ये
शब्दों का ऐसा समूह रहता है जिसमें एक सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहता है और जो एक बड़े सेंटेंस का एक भाग बनता है, तो उसे हम क्लॉज कहते हैं। अब ये सेंटेंस देखो, वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वॉज ओवर। वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वॉज ओवर। अब इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस है, पहला है वी रिटर्न होम और दूसरा है व्हेन स्कूल वॉज ओवर। द फर्स्ट वन जो है, यानी पहला जो क्लॉज है वी रिटर्न होम, ओके, ये पूरा अर्थ व्यक्त करता है, मेक्स कंप्लीट सेंस, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। अब सेकंड जो है व्हेन स्कूल वॉज ओवर इज नॉट कंप्लीट बाय इटसेल्फ, जब स्कूल खत्म हो गई, ये अपने आप में पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू कन्वे और एक्सप्रेस अ प्रॉपर सेंस। उसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए सो इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन ये जॉइनिंग वर्ड है जिससे कि हम दो क्लॉज को जोड़ते हैं और उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटर। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेटर रहता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोऑर्डिनेटर रहता है। अब आइडेंटिफाई द मेन और प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड एनसर्कल द सबऑर्डिनेटर। जैसे पहला सेंटेंस देखेंगे हम, दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब इसमें मेन क्लॉज पहला है, दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, ये मेन क्लॉज है। हु जो है सबऑर्डिनेटर है, इसलिए उसको सर्कल करेंगे हम, एनसर्कल करने के लिए कहा है। और सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड सेंटेंस में व्हेन ही आस्क द नर्स शी टेल्स हिम देयर स्टोरी, इसमें व्हेन सबऑर्डिनेटर है, इसलिए उसको व्हेन को हम सर्कल करेंगे। ही आस्क द नर्स, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। शी टेल्स हिम देयर स्टोरी, उसने उसकी खुद की कथा बताई, इसलिए ये है मेन क्लॉज। शी टेल्स हिम देयर स्टोरी, मेन क्लॉज। व्हेन सबऑर्डिनेटर, ही आस्क द नर्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा वाक्य, दे हैव शोन दैट वार हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट, इसमें दे हैव शोन ये मेन क्लॉज है, दैट सबऑर्डिनेटर है, वार हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। फोर्थ सेंटेंस में although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there, इसमें although सबऑर्डिनेटर है, इसलिए उसको एनसर्कल करना है, सर्कल करना है। it doesn't come in the narrator's way, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। and he takes them there, ये है मेन क्लॉज। ओके students, I hope you may have understood language study, subordinate clause, subordinators and dependent clause. Okay, if you have any problem you can ask me.